Good afternoon to my friends. Namaste to everyone. On the dais, we have the President of Bharatiya Janata Party, Sikkim Pradesh, my senior and my elder brother, Shri G.R. Thapa ji. On the dais, we have Honorable Professor Yadav, the Vice Chancellor of the Professional University of Sikkim. The August gathering, which comprises of the civil society, of students, bankers, politicians from all political parties of Sikkim. So I would say this is a mini Sikkim sitting over here. Welcome you all. And I should say that I'm really fascinated by the beauty of Sikkim. I had been to Sikkim before, but this time I came to MG Road. I was reminded of Shimla. I was reminded of many other cities. But let me tell you very frankly, Sikkim is beautiful. It's beautiful. May God bless Sikkim. आज जिस विषय पे मुझे यहाँ बुलाया गया है वह देश के बजट के विषय में चर्चा करने के लिए मैं आया हूं। जब से भारत आजाद हुआ है, बजट रखे गए हैं, स्वाभाविक है। बिना धन के, बिना बजट के राष्ट्र नहीं चल सकते। बजट केवल कुछ कागज नहीं होते हैं, बजट केवल कुछ प्रस्तुति नहीं होती है। बजट इज नॉट जस्ट अ प्रेजेंटेशन टू बी रेड आउट ऑन द फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट। बजट शोज द आइडिया ऑफ द गवर्नमेंट. बजट शोज द कमिटमेंट ऑफ अ गवर्नमेंट. Budget shows the forwardness of the government as to what the government desires. I was there in the parliament when Srimati Nirmala Sitharaman, in fact, she made a record by reading this budget for the 7th time on the floor of the parliament. And let me congratulate my sisters over here. I mean, she is a woman finance minister, and she has set a record of sorts by being the first woman finance minister of the country, rather the first finance minister of the country who read the budget for a consecutive 7th time. So this is something which I congratulate her for. I was there in the parliament there, listening to the budget being read out. The first thing that struck me, पहला विषय जो मेरे मन में आया जब बजट पढ़ा जा रहा था, उसके प्रावधानों को मैं सुन रहा था कि दिस इज अ बजट फॉर द फ्यूचर इंडिया. ये भविष्य का बजट है. दिस इज अ बजट मोस्टली केटरिंग टू द एंडेवर्स, द ड्रीम्स, टू द फ्यूचर ऑफ द यूथ ऑफ इंडिया. एंड लेट मी टेल यू व्हाट आई सी टुडे इन द रूम, टुडे इन दिस मीटिंग हॉल is the future of India. Most of you are young. You may be politicians, you may be bankers, you may be from various sections of the society, but all of you are young. So this budget, if I may, if I were to summarize the budget, I would say this is a youthful budget. यह युवकों का बजट है. मोदी जी ने बड़े स्पष्टता से कहा है कि ये ज्ञान का बजट है. जी से गरीब, वाई से युवा अर्थात यूथ, ए से अन्नदाता और एन से नारी शक्ति. जो चारों स्तंभ हैं हमारे समाज के, उन चारों स्तंभों को एक करके सबके लिए विकसित भारत किस प्रकार का होगा 2047 में, इसको ध्यान में रखते हुए बजट बनाया गया है. और सही बात है, दो इट्स अ फ्यूचरिस्टिक बजट catering to the youth, but every section of the society has found representation in a rightful manner. What fascinates me as to how education, employment and skilling, ये तीन शब्द, रोजगार, शिक्षा और उद्यमिता, स्किलिंग, इन तीन शब्दों को जिस प्रकार से इस बजट में रखा गया है, जिस प्रमाण में रखा गया है, यह भारत के भविष्य को निर्धारित करता है. शिक्षा में, रोजगार में और स्किलिंग में 1.48 लाख करोड़
यह खर्चा किया जाएगा 24-25 में, और इसके माध्यम से शिक्षा ऐसी होगी जिस शिक्षा को प्राप्त करके, जिस स्किलिंग को प्राप्त करके हम रोजगार दे सके, एंड हाउ टू इंसेंटिवाइज एम्प्लॉयमेंट both for the employer as well as for the employee, that reflects in the budget. आप शिक्षा में देखिए, it took 34 long years. In fact, I was speaking the other day. I am thankful to the party. I am thankful to the speaker, Shri Om Bidla ji, that he gave me a chance to speak on demand for grants in the sector of education. So I spoke about education. I said that one of the most important investment that any nation can make is in the field of education. If you invest in education, you prepare a future country. शिक्षा में आप देखिए 34 वर्ष लग गए. It took a 34 years long period to have the new education policy of India being drafted. 34 वर्षों के पश्चात पहली बार भारत में नई शिक्षा नीति लाई गई. Somewhere there was an approach. This is not a political program, but comparatives should always be there. कहीं न कहीं एक लेथार्जी. Somewhere there was the attitude of चलता है. Just imagine in the 80s we had the education policy, and thereafter there was a gap of 34 long years. It took 34 years for us to think that we really have to bring in a new education policy. And I am thankful the Prime Minister, Shri Narendra Modi, has brought an education policy which is being implemented, which has certain very characteristic feature much required for the nation. एक राष्ट्र में उस राष्ट्र के भाषा के प्रति प्यार, और यहां राष्ट्र की भाषा केवल एक भाषा नहीं, 22 भाषाएं जो हमारे संविधान जिसको पहचान देती है. ये 22 भाषाओं में बच्चों को ये देखा गया है, अगर 8 वर्ष की आयु तक वह अपने मातृभाषा में अपने विषय को पढ़ता है, then he has the maximum grasp over it. तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में केवल हिंदी या अंग्रेजी ऐसा नहीं, मराठी, बंगाली, उड़िया. Put this off, I don't need the fan. We'll have disturbance in sound otherwise. So the mother tongue has been promoted in this new education policy. The best part about the new education policy is it is holistic. ये सर्वांगीण विकास को देखता है. वोकेशनल एजुकेशन कैसे उसमें रखा जाए, कॉम्प्रिहेंसिवनेस कैसे उसमें आए, इन सब विषयों को लेकर न्यू एजुकेशन पॉलिसी 34 वर्ष के बाद बनती. मोदी सरकार ने अपने इस बजट में इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी, एजुकेशन, रोजगार और स्किलिंग के लिए 1.48 लाख करोड़ रखा है. स्किलिंग कैसे करेंगे? स्किलिंग के लिए 1000 ITIs को खड़ा किया जाएगा कि 1000 ITI जो राज्यों में वो लगभग 20 लाख युवकों को स्किलिंग करेंगे. It will not happen day after tomorrow. It will not happen the next month. But this big ticket reform is going to present itself in the due course of time within this 5 years tenure. And these 1000 ITIs, they are going to skill the students. They are going to give them the vocational training which is much required for them to be employable. Employment कैसे बढ़ेगी? एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने के लिए 3 जो स्कीम्स लाए गए हैं, 3 तरह के स्कीम्स लाए गए हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण है. फॉर द फर्स्ट टाइमर्स, जो पहली बार नौकरी करेगा, उसके पहले तनख्वाह में से 15,000 रुपए भारत सरकार इस बजट से देगी. 15,000 रुपए. आप यदि 1 लाख से कम तनख्वाह में रहते हैं, supposedly your salary is 60,000 or 70,000 rupees, तो पहला 15,000 रुपए जो आपके तनख्वाह का होगा वह भारत सरकार 3 किस्तों में 5,000, 5,000
और 5,000 3 किस्तों में भारत सरकार देगी। लगभग 210 लाख बच्चे, युवक इससे लाभान्वित होंगे, उनको रोजगार मिलेगा। दूसरा स्कीम जो रखा गया है वह है एम्प्लॉय और एम्प्लॉय दोनों के लिए। बोथ द एम्प्लॉय एंड द एम्प्लॉयर would be given incentive under the EPFO scheme for a period of 4 years. 4 वर्षों तक EPFO स्कीम में जो कंट्रीब्यूशन करना पड़ता है, एम्प्लॉयर को भी करना पड़ता है, एम्प्लॉय को भी करना पड़ता है, उसमें भारत सरकार अपनी सब्सिडी देगी। भारत सरकार कंट्रीब्यूट करेगी इस बजट से, ताकि एम्प्लॉयर के ऊपर और एम्प्लॉय के ऊपर लोड कम रहे, जिससे कि दोनों खुश रहें। एम्प्लॉयर भी हायरिंग करने में कुंठा न दिखाए और एम्प्लॉय भी नौकरी करने में किसी प्रकार का कुंठा न दिखाए। बोथ आर हैप्पी, द एम्प्लॉयर एंड द एम्प्लॉय। 4 years. And the third scheme is for the employer. Incentive to the employer. 3,000 rupees contribution to the EPFO for a period of 2 years. इन तीनों स्कीम्स को मिलाकर के, शिक्षा को मिलाकर के और उसके बाद स्किलिंग को मिलाकर के 2 लाख करोड़ रुपए लगभग खर्च होंगे। 1.48 प्लस अदर्स, ये सब मिलाकर के लगभग 2 लाख करोड़ रुपए 5 वर्षों में भारत सरकार खर्च करेगी और लाभान्वित होंगे लगभग 4 करोड़ 10 लाख बच्चे। 4.1 crore students would be benefited by this scheme, which invests 2 lakh crore rupees for employment generation, for skilling and for education in the coming 5 years. इस कारण से मैं कहता हूं कि सबसे बड़ा प्रावधान जो इस बजट में है वो एम्प्लॉयमेंट के लिए है, अपॉर्चुनिटी के लिए है और वो युवाओं के लिए है। दूसरा महत्वपूर्ण विषय है जो इस बजट में मेरे लिए मुझे लगता है बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे लगता है कि एनी बजट से इट्स वेरी इजी टू रीड आउट द बजट, टू गिव promises, but the promises that you make within the budget, the commitment that you make within the budget has to be within the frameworks of fiscal discipline. अगर अनुशासन नहीं रहेगा, फिस्कल डिसिप्लिन नहीं रहेगा, तो बजट कोई काम का नहीं। आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया, ये हमारे कहावत है। आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया, तो फिर खर्चा करते रहिएगा, चादर से अधिक आपका पैर पसर जाएगा। इफ यू अर्न लेस एंड स्पेंड मोर, if you commit more and you have no sources of generating revenue, then it's but natural that you are not going to fulfill your commitment. The best part about this budget is that it is well within the boundaries of fiscal prudence, of fiscal discipline. एक राष्ट्र कितना कमाता है और वह देश कितना खर्च करता है, उन दोनों के बीच जो फर्क होता है, अगर उसको परसेंटेज के हिसाब से निकाला जाए तो उसको फिस्कल डेफिसिट कहते हैं। बोरोइंग करना पड़ता है। सपोज आप 50 रुपए कमाते हैं, 100 रुपए खर्च कर देते हैं, तो जो बीच का 50 रुपए है आपको किसी और देश से मांगना पड़ेगा, आपको अपने नेबर से मांगना पड़ेगा कि भैया 50 रुपए दो, मेरे घर में 100 रुपए खर्च हो गए हैं, मेरे पास है नहीं। दिस फिस्कल डेफिसिट, you would be astonished, you know, the fiscal deficit in India and all countries worldwide, in fact, because of the pandemic called COVID, had skyrocketed. हमारी भी fiscal deficit 21-22 में 9.2% थी. It was a whooping 9.2%, and remember, that time the Honorable Finance Minister Nirmala Sitharaman had said that I will try to bring this down to 4.5%. That's the aim of our country, to bring down the fiscal deficit to 4.5%. And I was really astonished the way she announced that day.
I'm thankful to her and to Modi ji that despite Corona, despite the high fiscal deficit of 9.2% that we saw about a couple of years ago, now the fiscal deficit is only 4.9%. We are well within the path to reach the fiscal deficit that was promised, that is 4.2%. हम 4.2% फिस्कल डेफिसिट को खड़ा करेंगे, अर्थात जो फिस्कल प्रूडेंस हमने प्रॉमिस किया था, जो डिसिप्लिन हमने प्रॉमिस किया था, वो प्रॉमिस पूरा करके दिखाएंगे। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, ये छोटा विषय नहीं। सब कुछ देना और डिसिप्लिन बना के रखना, मुफ्त दे देंगे, मुफ्त दे देंगे, मुफ्त दे देंगे, बोलना तो बहुत आसान है, मगर जेब में होना भी चाहिए। जेब में है नहीं, सब दे देंगे, ये कहना बहुत आसान है, मगर ये मोदी ने करके दिखाया, इसके लिए मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरा विषय जो मुझे लगता है बजट में, मैं एक युवा हूं, मैं अपने आप को युवा कह सकता हूं, अभी चश्मा लगा के पढ़ूंगा थोड़ी देर में, मगर युवा अपने आप को कह सकता हूं, क्योंकि ऑन अ लाइटर नोट, बुरा मत मानिएगा, मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। जब तक राहुल जी अपने आप को युवा कहेंगे, मैं 5 साल छोटा हूं उनसे, तब तक मैं भी अपने आप को युवा कहूंगा, इसलिए वो मुझे लगता है हमेशा अपने आप को युवा कहेंगे, मैं भी युवा कहूंगा अपने आप को, ये हमारे लिए फायदा है। तो इसलिए मैं एक युवक हूं, तो मैं एक बजट के उस पोर्शन को जरूर देखता हूं कि कैपेक्स स्पेंड क्या है, बजट में कितना कैपिटल एक्सपेंडिचर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कर रही है सरकार। क्यों ये महत्वपूर्ण क्यों है? हाउ मच डज अ गवर्नमेंट स्पेंड ऑन द इंफ्रा प्रोजेक्ट्स, द कैपेक्स, द कैपिटल एक्सपेंडिचर? व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट? It is important because it is sustainable growth. This capex gives you sustainable growth. This capex gives you credibility. क्या होता है देखिए, सपोज करिए मेरे घर में पैसे नहीं, मुझे किसी के पास उधार लेने जाना है, पैसे नहीं है, मुझे कुछ खर्चा करना है, तो कैसे खर्चा करूंगा? उधार लेने जाऊंगा। मैं उधार लेने जाऊंगा, डीआर थापा जी के पास कहूंगा, थापा जी आज मेरे घर में पार्टी है, आज मैंने पार्टी रखी है, बहुत तरह के पकवान बनेंगे, घर में पैसे नहीं, आप कुछ पैसे देंगे? पकवान बनने हैं, बैलून लगने हैं, रसमलाई आएगा, नए कपड़े भी पहनने हैं। तो थापा जी बोलेंगे, अरे तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो ये सब करो मत ना, मजे क्यों करते हो, मत करो, लो तुम दोस्त हो, फिर तुमको थोड़ा सा देता हूं, जाओ। मगर अगर मैं थापा जी के पास जाके बोलूंगा, थापा जी देखिए मेरे पास पैसे नहीं है, मगर गरीब लोगों के लिए मुझे अस्पताल बनाना है, 2 मरीज मेरे पास आए हैं, उनके पास पैसे नहीं है, मुझे उनकी चिकित्सा करनी है। थापा जी बोलेंगे, अच्छा ये तो बड़ा अच्छा आदमी है, पैसे नहीं है फिर भी दूसरों की मदद करना चाहता है, कितना चाहिए? तो मैं बोलूंगा 50,000 रुपए दे देंगे तो 2 लोगों का अच्छा हो जाएगा। तो थापा जी बोलेंगे, अरे 50,000 रुपए छोड़ो, तुम ये 1 लाख रुपए लो और जाओ 5 लोगों की और मदद करो। देंगे ना? दे देंगे। तो ये होता है डिफरेंस। जब आप इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं, हॉस्पिटल बनाते हैं, बड़ी बड़ी सड़कें बनाते हैं, पुल बनाते हैं, जब आप स्कूल्स बनाते हैं, कॉलेजेस बनाते हैं और उस पर आप स्पेंडिंग करते हैं, तो पूरा विश्व आपके पीछे खड़ा होता है, बनाइए, हम आपको मदद करेंगे। वर्ल्ड बैंक बोलती है हम आपको मदद करेंगे, और इस देश की क्रेडिबिलिटी बनती है कि यह देश अपने देश के पिछड़ों के लिए तत्पर है, उनके लिए काम कर रहा है। और हां, ये कॉलेज बनाएंगे, कॉलेज बनाने के बाद बच्चे पढ़ेंगे, बच्चे पढ़ेंगे तो बच्चे एम्प्लॉय बनेंगे, एम्प्लॉय बनेंगे तो पैसा आएगा। ये ब्रिज बनाएंगे, ये अच्छे रोड बनाएंगे तो सिक्किम में टूरिज्म बढ़ जाएगा, टूरिज्म बढ़ जाएगा तो पैसा आएगा, पैसा आएगा तो ये मेरा पैसा चुकाएंगे, तो वो पैसा देंगे भी। और अगर बर्थडे पार्टी बनाएंगे तो पैसा चुका नहीं पाएंगे। ये जो मुफ्त की रेवड़ियां बांटते हैं, जो पॉलिटिकल पार्टी कहते हैं बिजली मुफ्त, ये मुफ्त, वो मुफ्त, सारा कुछ मुफ्त 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 मुफ्त, फ्री 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 फ्री।
तो पॉकेट खाली, कुछ नहीं होने वाला, क्रेडिबिलिटी डाउन. बट इफ यू मेक इंफ्रास्ट्रक्चर, योर क्रेडिबिलिटी विल बी अप, sustainable growth will be up. That's the reason as to why any nation's credibility can be gauged by the capex expenditure. आप capex कितना है, capital expenditure कितना है, और इस साल वो historical high है इंडिया के लिए, वो है 11,11,101 करोड़ रुपए. This time the capex that India's budget has allotted for infra development is a record 11 crore 11,111 rupees. Just imagine, this is approximately 3.8% of the country's GDP. जो भारतवर्ष का GDP है, उस GDP का 3.8% ये कैपेक्स है. कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, कैपिटल एक्सपेंडिचर इंफ्रास्ट्रक्चर पे होंगी. पुल बनेंगी, स्कूल्स बनेंगे, कॉलेजेस बनेंगे, बिल्डिंग्स बनेंगे. आप कंपेयर करिए, आज से 10 वर्ष पहले 2013 और 14 के बजट में दिस कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर वाज 2,57,641 ओनली. 2,57,641 only. So now it has been quadrupled. 4 गुना बढ़ गया है. 10 वर्षों में मोदी जी की सरकार ने, एनडीए की सरकार ने इसे 10 गुना बढ़ाया है. 10 टाइम, 4 टाइम्स बढ़ाया है. क्वाड्रुपल्ड, 4 टाइम्स बढ़ाया है. 2 से लगभग 12 हो गया है. इतना बढ़ गया है. That time it was 2.8% of the GDP. This time it is 3.8% of the GDP. That's how the capex expenditure capex has gone up. And a very important one at that is promotion of internship. लगभग 1 करोड़ से अधिक युवाओं को 500 भारत की बड़ी कंपनियों में 1 वर्ष के लिए इंटर्नशिप करने का मौका मिलेगा. इससे क्या होगा? इससे नंबर 1, जो युवा है वो 500 बड़ी कंपनी जो होंगी उन पे जाके अपना एक्सपोजर बढ़ा सकता है. He will know the work scenario of these 500 big companies. Secondly, he will have something to add to his CV. There will be value addition in his curriculum vitae. अपने CV में वैल्यू एडिशन करेगा. Thirdly, he will get some money in the hand. 5,000 rupees would be given to him during the internship, और 6,000 rupees internship शुरू होते समय दिया जाएगा. One time 6,000 rupees and 5,000 rupees monthly would be given during the internship. ये 6,000 rupees आपके कुछ खरीदने के लिए, आपको वहां इंटर्नशिप करने के लिए फ्लाइट में जाना है, गाड़ी में जाना है, बस में जाना है, सिलीगुड़ी से यहां आना है, इसलिए आपको ये 6,000 रुपए वन टाइम दिया जाएगा. और 5,000 रुपए उसमें कंपनी आपको देगी. कंपनी में जो 5,000 रुपए होगा उसका 90% भारत सरकार देगी और 10% कंपनी अपने CSR फंड से देगी. 90% would be given from this budget by the government of India, and 10% would be contributed by the company from its CSR fund. कंपनी को भी एक हाथ मिला और युवा को एक्सपीरियंस मिला. यह इंटर्नशिप, यह भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है. एंड व्हेन द यंगस्टर्स टुडे फ्रॉम हियर गो टू देयर रिस्पेक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंसीज, देयर इज अ प्रोविजन लोन ऑफ 10 लाख रुपीस for educational institution. कोई युवा डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन में पढ़ना चाहते, 10 लाख रुपए भारत सरकार लोन के रूप में देगी. 3% का इंटरेस्ट सब्वेंशन भी होगा. तो
यह जो है एजुकेशन लोन, आप अपने अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो उम्र दराज हो गए हैं वो जाके गार्डियंस को बताएं कि अरे भाई तुम बोल रहे थे ना कि पैसे अगर अच्छे होंगे तो हम अच्छे कॉलेज में भेजेंगे, तो 10 लाख रुपए आप ले सकते हैं लोन में। और जो हमारी यहां युवा वर्ग के लोग यहां बैठे हैं, हमारे बहन भाई जो बैठे हैं, वो जाके अपने आप अपने दोस्तों को बता सकते हैं, लेट्स अवेल द लोन एंड लेट्स गो फॉर बेटर एजुकेशन। 10 लाख रुपए छोटी रकम नहीं होती है। साथियों, मैं देख रहा हूं आज बहुत महिलाएं भी हैं, बहुत महिलाओं ने मेरा स्वागत भी किया, उनको बहुत धन्यवाद। खदा कहते हैं ना, बहुत ही सुंदर है खदा का ट्रेडिशन। मैं ऐसे सब रखूंगा, बहुत प्रेम से सजो के रखूंगा। बहुत बहनों ने खदा पहना के आज मेरा स्वागत किया है। और बहनों के लिए खुशखबरी भी है। दिस बजट हैज अलॉटेड 3 लाख करोड़ रुपीज फॉर वुमेन सेंट्रिक एक्टिविटीज, महिलाओं के उन्नति के लिए, टू टेक फॉरवर्ड द कॉज ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स। दिस बजट हैज एन एलोकेशन ऑफ 3 लाख करोड़ रुपीज। कैसे? वुमेन हॉस्टल्स, I just was studying as to what is the proportion of women who are working in Sikkim, working women percentage in Sikkim. It is approximately 58.4%. 58.4% of women work in Sikkim. This is, I think, one of the best things about Sikkim, one of the highest figures across the country. I have not gone across the figures in other states, but while I was reading Sikkim, I found that 58.4% of women work in Sikkim. Naturally, if they work, they would need the facilities like women hostels. They would need facilities like crèche for the children, for the infants. So all these facilities have been inculcated to increase the employment, employability, facility, and to see to it that our women move forward, march forward. 3 lakh crore rupees allotment for this section. Congratulations. About 60% of Sikkim, I would say, resides in rural constituencies, has a rural background. So there's a good news for Sikkim as far as the rural background is concerned. Modi government and Srimati Nirmala Sitharaman has specially given emphasis to rural infrastructure and rural development. An amount of 2.66 lakh crore rupees has been allocated for rural development, especially for rural infrastructure. Apart from this, infrastructure in rural areas, Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana Phase 4 has been started. One of the biggest flagship programs has ever been started in this country is प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। मैं अपने चुनाव के काम में गांव में जाता था। मेरे लगभग 17 लाख वोटर, 17 lakh voters. There are approximately 13 panchayats in my constituencies. I have 3,500 villages in my constituency. So I used to travel to all these villages. And when I used to go to these villages, the sarpanch used to tell me, or someone who was from political affiliation, जी ये जो सड़क बना है ना, ये अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना आया था, उसमें बना। See, you and me may not realize, of course you realize the importance of road, because when I came from Siliguri today, from Dogra, they told me that आज ही खुला है ये सड़क। अभी सुन रहा हूं फिर बंद हो गया है, मेरे टेंशन है कल 7 घंटे आने वाला है। Throughout the way I was thinking of you, my friends, कि मेरे दोस्तों को कितनी तकलीफ हो। मेरे लिए तो एक दिन है, आप लोगों को कितना कुछ फेस करना पड़ता होगा, जाना आना कितना इम्पोर्टेंट है, अच्छे रोड होना कितना महत्वपूर्ण है।
और मैं गर्व के साथ कह सकता हूं अच्छे रोड बनाने के लिए तो नेचुरल कैलामिटीज एंड लैंडस्लाइड्स हो रही है जिसके कारण वॉश आउट हो रहा है, और ये जो ग्लेशियल फ्लड हुआ अक्टूबर में उसके कारण बहुत डैमेज हुआ सिक्किम को। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं जो भी इसमें हमारे दोस्त मारे गए हैं उनको शांति मिले। लगभग 60-62 लोगों की जान गई है उस फ्लड में, उनको शांति मिले। आर्मी के भी लगभग 30 जवान मारे गए हैं उसमें, उनको भी शांति मिले। तो ये रोड बहुत महत्वपूर्ण होता है। फेज 4 में प्रवेश किया है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, और 25,000 गांव जो बचे हुए थे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से उनको जोड़ने का काम ये बजट करने वाले हैं। अब देखिए मोदी जी की एक खासियत है, कुछ भी छोड़ना नहीं। कोई भी गांव ऐसा नहीं होना चाहिए जहां बिजली ना हो, 100% इलेक्ट्रिफिकेशन होना चाहिए। कोई भी ऐसा गांव ना हो जहां सड़क नहीं पहुंचनी चाहिए। इसलिए 100% प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना होना चाहिए। 25,000 गांवों को इस बार फेज 4 ग्राम सड़क योजना के माध्यम से जोड़ा जाएगा। यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इस बजट में जहां एम्प्लॉयमेंट के लिए बहुत कुछ कहा गया है, एमएसएमई के माध्यम से भी एम्प्लॉयमेंट होता है। यूथ बैठी है, मुझे भी पता नहीं बहुत लोगों के यहां एमएसएमई हो सकते हैं, या बहुत लोग ऐसे लोगों को जानते होंगे जिनके स्टार्टअप या एमएसएमई हो सकते हैं। तो स्टार्टअप के लिए तो एक बहुत अच्छी खबर है। वो अच्छी खबर है कि एंजल टैक्स हटा दिया है। आप एंजल टैक्स जानते थे? एंजल टैक्स जो स्टार्टअप में क्या होता है, मैं कुछ स्टार्टअप कर रहा हूं, मुझे कुछ कंपनी खोलनी है, मेरे पास तो पैसे नहीं है, तो मैं जाता हूं थापा जी के पास। थापा जी सिक्किम में हमारे अध्यक्ष तो सब मांगना ही नहीं को पड़ेगा, और किससे मांग? थापा जी पैसे दीजिए, हम स्टार्टअप शुरू करेंगे। तो थापा जी पैसे देते हैं स्टार्टअप शुरू करने। तो सरकार बोलती थी पहले कि एंजल टैक्स, मतलब ये एंजल है, ये मेरे लिए एंजल हो गए क्योंकि इन्होंने पैसा दिया। तो एंजल ने जो पैसा दिया उसके ऊपर टैक्स लग जाता था कि इन्होंने अगर 1 लाख रुपए पैसे दिए हमें कि आप स्टार्टअप करो, उस पर कुछ पैसा टैक्स के रूप में लगता था। ये सरकार क्यों लगाती थी? क्योंकि कई बार ये देखा गया कि मनी राउंड ट्रिपिंग करने के लिए, ब्लैक मनी को व्हाइट बनाने के लिए ये एंजल टैक्स इस्तेमाल होता है। मगर सरकार ने दो चीजें देखा। सरकार ने देखा, बहुत सारे केसेस स्टडी की कि ये राउंड ट्रिपिंग का मसला ज्यादा इसमें नहीं होता है। और दूसरा विषय सरकार ने देखा कि ये जो एंजल टैक्स पड़ जाता है, बेचारा युवक जो एमएसएमई स्टार्ट कर रहा होता है या स्टार्टअप कोई स्टार्ट कर रहा होता है, वो अपना काम पूरे अच्छे तरीके से नहीं कर पाता है क्योंकि पैसा ले रहा है, उस पर भी टैक्स देना पड़ रहा है। तो इस बार मोदी जी ने कहा एंजल टैक्स हटा दिया गया है, कोई एंजल टैक्स नहीं पड़ेगा, आराम से इन्वेस्टर पैसा देगा और जो स्टार्टअप करने वाला वो स्टार्टअप करेगा। दिस इज अ बिग बूस्ट फॉर स्टार्टअप। ठीक उसी प्रकार एमएसएमई को आगे बढ़ाने के लिए जो मुद्रा लोन दिया जाता था, मुद्रा लोन में एक तरुण का कैटेगरी भी है। जो तरुण कैटेगरी में 10 लाख रुपए पहले दिए जाते थे, उसको बढ़ा करके इस बार 20 लाख रुपए कर दिए गए हैं। आप 20 लाख रुपए ले सकते हैं और 20 लाख रुपए में अपने एमएसएमई को आरंभ कर सकते हैं। मुद्रा योजना में ये शुरू किया गया है। यह भी एक बहुत बड़ी छलांग है। 10 का डबल कर देना यह कोई साधारण विषय नहीं है। बंधुगण, जैसे मैंने कहा ज्ञान के लिए किया गया है, जी फॉर गरीब, गरीबों के सब कुछ बता ही रहा हूं। ए फॉर अन्नदाता है। अन्नदाता के लिए, किसानों के लिए किस प्रकार से देश को लेकर, किसानों को लेकर चिंता मोदी जी ने व्यक्त की है, वो तो हमने पहले भी देखा था। स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट आई थी जिसमें 1.5 गुना एमएसपी बढ़ाने की बात हुई थी। एंड आई शुड थैंक द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर that for the first time, despite the previous government rejecting the Swaminathan Committee report, Prime Minister Narendra Modi increased the MSP as proposed by the Swaminathan Committee by 1.5 times. 1.5 गुना MSP बढ़ाने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। इस बार किसानों के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपीस का बजट रखा गया है, केवल किसान के लिए, कृषक, एग्रीकल्चर हेड में 1.52 लाख करोड़ रुपीस। 2 वर्षों के अंदर
लगभग 1 करोड़ किसान को नेचुरल फार्मिंग की ओर लिया जाएगा। और इसके लिए मुझे लगता है सिक्किम तो नेचुरल फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग का हेवन है, नॉट ओनली इन इंडिया बट इन द वर्ल्ड एज वेल। आई बिलीव दिस इज वन ऑफ द प्लेसेस which is known for its organic cultivation, which is known for its natural farming. I believe Sikkim needs an applause for this. Applause भी आप लोग कंजूसी से दे रहे हैं, ये तो मुफ्त में है, ये तो एंजल टैक्स हो गया है। तो 2 वर्षों के अंदर नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट किया जाएगा। केवल इतना ही नहीं, एक फ्यूचरिस्टिक थॉट रखते हुए 109 ऐसे क्लाइमेट रेजिलियंट वैरायटी जो क्रॉप्स के हैं वो तैयार किए जाएंगे 32 फील्ड्स में।